A very good morning to all dear children. Here we are going to start the new chapter in your English book, that is Helen Keller. It is in unit 5. First of all, we are going to read it. Okay children, you can see a baby here in the cradle. पालने में आप एक बेबी को देख सकते हैं. Now let's start reading it. Okay, the chapter name is Helen Keller. Here we are only reading it. Our emphasis on reading only. We will not explain now. Okay, we will not have the explanation. Now we will only read. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. Okay, let's read all these 3 lines again. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Okay, let's read but से फिर से पढ़ते हैं. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Helen lived, but she was not same after her illness. "Something is very wrong," her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. Let's read second paragraph again. Helen lived, but she was not the same after her illness. "Something is very wrong," her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. Let's read third paragraph again. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. Though Helen could not see or hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. "Helen is very smart," she said, and added, "The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself." Okay, now let's this paragraph again. Though Helen could not see or hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. "Helen is very smart," she said, and added, "The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself." She is locked, not looked, it is locked. She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. She is becoming wild and she would not let anyone comb her hair, her clothes. Okay children, here you can see the Helen, थोड़ा सा big हो गई Helen and her mother.
Okay, now let's read second page of this story. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Okay, her clothes were even dirty. She often angry. Sometimes she was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help. Maybe she is the teacher. Okay, Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. DOOL, doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand sign. Okay, because she can't see or hear. ठीक है, she can't see or hear, तो that means उसको कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था and दिखाई भी नहीं देता था. Then how she would sign? Okay, maybe she is able to see. Here नहीं होता. Doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. Okay. तो ना वो देख सकती थी ना सुन सकती थी, तो हेलन के हैंड में ही उन्होंने कुछ जैसे उसको फील हो वर्ड्स, कुछ लैंग्वेज से उन्होंने वर्ड्स बनाए. Helen copied her teacher and spelled doll too. Helen also copied her teacher and spelled doll too. But she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand. उसके हैंड पे वो स्पेल कर रही थी बहुत सारे वर्ड्स को, डे एंड नाइट, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ अगेन. Her parents thought that they should find a young teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. Doll, DOOL, doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night, to make Helen understand. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. She understood that words. Okay, let me read this paragraph again. One day her teacher made Helen put her hands into running water. Then she spelled WATER. Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. She understood that word. Were the most important thing in the world. She understood the word WATER, that is wet in nature, and that is running over her hand. It is the most important thing in the world. Yes children, of course water is the most important thing in the world. Words would tell her everything she wants to know. Okay, now she understood that everything has a name, and that name has a spelling, and that is important to recognize the thing. It is that thing. Now she understood these spellings, and these words are the most important thing of the word also. Okay children, like this we have completed the reading of this Helen Keller. A very good morning dear children. Here
Now we are going to have explanation for the story. We have read it. Now we are going to have explanation for the same. As you already know, till now the story name is Helen Keller. Okay, now let's read and have understanding about it. It was the summer of 1880. गर्मियों के दिन थे 1880 के. A healthy baby, एक स्वस्थ बेबी was born in a small town in Alabama. अलाबामा के एक छोटे से टाउन में एक हेल्दी बेबी का जन्म हुआ. Her parents loved her dearly. उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. And named her Helen Keller. और उसका नेम रखा गया Helen Keller. But one day, लेकिन एक दिन, the baby became ill and day after day her fever stayed high. एक दिन बेबी बीमार हो जाती है and day after day, दिन प्रतिदिन, दिनों के बाद उसका फीवर हाई होता जा रहा था. her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better. सब, हर कोई परिवार में सब ने उसकी हेल्प करने की मदद की, कोशिश की, ट्राई किया. ठीक है, एवरीवन, हर किसी ने, ताकि वो टू गेट बेटर, वो अच्छी हो जाए. बट ऑल दे कुड से, लेकिन वो जो कुछ भी कह सकते थे वो यही कह पाते थे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लिव, बेबी हो सकता है लिव ना करे, जिंदा ना रहे. हेलन लिव्ड, बट हेलन जिंदा रही, मतलब बच गई. हेलन लिव्ड मतलब वो जीवित रही. But she was not the same after her illness. But she is light. ठीक है, her parents was able to save her. But now the illness, because she is recovered from the illness, but she was not the same after her illness. बीमारी के बाद. Something is very wrong. Her mother said. उसकी मदर ने कहा कुछ बहुत गलत है. At last they found out what was wrong. लास्ट में उनको पता लग ही गया कि क्या रॉन्ग था. रॉन्ग क्या था चिल्ड्रन? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो चाइल्ड थी, जो बच्ची थी, वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. ठीक है, वो थोड़ी बड़ी लड़की हो गई. उसके पेरेंट्स को उसके लिए सॉरी फील होता था. हेलन ऑफन क्राइड. हेलन भी कई बारी रोती थी. एंड हेल्ड, ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है चिल्ड्रन. ऑफन मतलब कई बारी. क्राइड रोती थी. एंड हेल्ड ऑन हर मदर, अपनी मदर को पकड़ती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. उसके फादर क्या कहते थे कि जो भी पुअर गर्ल को चाहिए वो उसको दे दो. बिकॉज वो कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ देख नहीं पा रही है, वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ पा रही है. कुछ समझो ना, तो वो अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रही है, ना वो किसी और का कम्युनिकेशन सुन पा रही है, किसी और के मैसेजेस, बातचीत सुन पा रही है, और ना ही वो खुद बोल पा रही है. तो बोल पा रही है लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रही और कुछ देख नहीं पा रही. तो कैसी मम्मा है, कौन पापा है, आसपास क्या चीज़ें हैं, ना उसको वो दिख रही हैं और ना वो उनमें से किसी की बातों को सुन पा रही है. तो बट वो रोती थी, कोई कुछ कर नहीं पाता था. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. ठीक है, लिटिल ब्राइट लिटिल गर्ल थी, स्मार्ट गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री, बट उसकी मदर इस बात से एग्री नहीं करती थी, सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, वो कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है. सी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. वो बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ें बहुत जल्दी सीख सकती है, बट प्रॉब्लम है कि हम उस तक बातें कैसे पहुंचाएं. मतलब उसको जो भी चीज़ सिखाना है, बिकॉज वो देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, तो हम दिखा के भी कुछ नहीं सिखा सकते, हम सुना के भी कुछ नहीं सिखा सकते. ओनली द थिंग इज़ फील करा के हम उसको सिखा सकते हैं. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. जो उसने अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लिया है. हेलन बिगेन टू ग्रो चाइल्ड. अब वाइल्ड होता है जंगली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन? वाइल्ड, जंगली. अब वो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, वाइल्ड होती जा रही थी. बिकॉज अब आप खुद सोचो ना, आप कुछ किसी को सुन पा रहे हो, ना आप देख पा रहे हो, आप अपनी बात ही किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको भी गुस्सा आएगा. तो उसको भी वही गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण वो वाइल्ड होती जा रही थी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर. वो किसी को अपने हेयर को कॉम करने भी नहीं देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके जो क्लोथ्स थे वो भी हमेशा क्या रहते थे चिल्ड्रन? डर्टी रहते थे, गंदे. डर्टी मीन्स गंदे. शी वॉज ऑफन एंग्री.
वो अधिकतर एंग्री ही हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी तो वो फ्लोर पे गिर जाती थी, लेट जाती थी गुस्से में और किक करती थी, अपने फीट्स को मारती थी फ्लोर पे. ओके, मतलब समझ रहे हो उसकी हालत, बिकॉज शी इज़ नॉट इन कंट्रोल. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लाइफ है, उसको क्या करना है. नथिंग इज़ क्लियर टू हर एंड शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग. उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था. उसकी कंडीशन ही ऐसी थी, तो किसी की भी ऐसी कंडीशन होगी तो एवरीबडी विल बिहेव लाइक दिस. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने सोचा उसको उसके लिए एक टीचर फाइंड आउट करना चाहिए. मिस सुलीवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. ठीक है, कि कैसे वर्ल्ड को वो देखे, कैसे वो संसार को देखे. मिस सुलीवन एग्री हो गई उसकी हेल्प करने के लिए. शी इज़ मिस सुलीवन. मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल. यू कैन सी दिस इज़ द डॉल. एंड स्पेल किया उन्होंने DOLL, स्पेल्स डॉल. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलन्स हैंड. अब स्पेलिंग मुंह से बोलेगी तो सुन नहीं रहा है, दिखा के इशारों से स्पेलिंग समझाएगी तो उसको दिख भी नहीं रहा है. ओनली द थिंग इज़ फीलिंग. तो तभी उसके हैंड्स पे वो DOLL अपनी फिंगर की हेल्प से बनाया उसने. DOLL अपनी फिंगर की हेल्प से हेलन के हैंड पे बनाया एंड देन बोला इट इज़. ये उसके हैंड में पकड़ाई डॉल, ये इट इज़ DOLL, डोल. ठीक है. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन. कुछ स्पेशल हैंड साइंस होते हैं जो कि वो बना रही थी हेलन के हैंड पे. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल DOLL टू. हेलन ने भी टीचर को कॉपी किया और उसने भी यही स्पेल किया DOLL. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग. अब वो उसने कॉपी कर लिया क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, बट अभी तक भी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है. हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन. हेलन को मिस सुलीवन पसंद थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो स्ट्रिक्ट थी बट वो काइंड भी थी, दयालु भी थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट. दिन और रात लगाई, मेहनत की, बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल्ड किया हेलन के हैंड पे टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन को सब समझ में आने लगे. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर. एक दिन हेलन की टीचर यानी कि मिस सुलीवन ने उसका हैंड रनिंग वाटर की तरफ डाला. देन शी स्पेल्ड WATER. सडनली हेलन अंडरस्टूड. एकदम से हेलन को समझ में आ गया वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड. अब समझ में आ गया जो ये सिखा रही है मुझे, ये WATER, इट इज़ द वाटर. इसको वाटर बोलते हैं एंड ये जो मेरे हैंड्स पे गिर रहा है इसी का नाम वाटर है. अब वो समझ गई कि ये सारी चीज़ जो अभी तक मैं सीख रही थी, मेरे हैंड्स पे जो भी साइंस मैम बना रही थी, वो वर्ड्स हैं. वो वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं, जो भी उन्होंने मुझे चीज़ मेरे हैंड में दी या मुझे जो दिखाया, वो उस चीज़ का वो नाम है, वो वर्ड है. नाउ शी अंडरस्टूड दैट. अब उसको समझ में आ गया. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. उसको समझ में आ गया जो वर्ड्स हैं, जो कि मैम देखो इस तरीके से वो साइंस उसके हैंड पे बनाती थी, और वो समझ गई कि जो भी ये वर्ड्स मैं सीख रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संसार में. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. ये वर्ड्स ही, ये शब्द से पता चलेगा, जो भी उसको कुछ जानना है वो उन्हीं वर्ड्स के थ्रू जान पाएगी. अभी मैंने आपको स्टोरी बताई तो ये सारे वर्ड्स ही बोल रही हूँ मैं. अगर ये वर्ड्स आपको पता ही नहीं है तो आप स्टोरी भी नहीं समझ पाओगे. अब उसको ये वर्ड समझ में आ गए, अब वो ईजिली इन सबको क्या कर पाएगी, चिल्ड्रन समझ पाएगी. तो एट द एंड शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. Okay children, I hope you have understood the story in a well manner. Thank you so much.